Good morning class. I hope you are doing well. Today is our online classes and the topic is volume. We have completed 14.1 in last class and after that school get closed. So today we will talk about volume of solids. आज हम volume of solids की बात करेंगे. Everyone know that what is volume. Volume क्या होता है? The space occupied by a solid is called volume. किसी भी solid के द्वारा जो space occupy किया जाता है उसी को हम कहते हैं volume. Example के तौर पे this is duster and it is a solid figure and the space occupied by this solid is called its volume. इसके द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्युपाई किया गया, जितना भी जगह इसने ऑक्युपाई कर लिया, वो इसका वॉल्यूम है. You can see that this is water bottle and this is also a solid figure. Every figure which has length, breadth and height is called a solid. So this is solid. And the space occupied by this bottle is also called its volume. How much water is in this bottle is determined by this volume. इसके वॉल्यूम के द्वारा हम ये पता कर पाएंगे कि इसके अंदर कितना वाटर फिल हो सकता है. Then how much space is occupied by this water. तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की आपके सिलेबस में, आपके एक्सरसाइज में दो टाइप के सॉलिड्स के वॉल्यूम के बारे में बात की गई है. फर्स्ट वन इज Q and second one is cuboid. What is Q and what is cuboid? सबको लूडो खेलना पसंद है. Everyone likes Ludo. In Ludo you use dice which is a cubical shape. आप जब लूडो खेलते हैं तो उसमें एक डाइस होता है, पासा जो होता है वो आपके क्यूब के आकार का होता है. एंड योर रूम आल्सो, इफ वी विल टॉक अबाउट योर रूम, योर क्लासरूम, देन यू कैन सी दैट दिस इज अ क्यूबॉइड. व्हाट इज क्यूबॉइड? A solid figure which has opposite faces same, जिसके सिर्फ opposite faces same होते हैं. जैसे इस रूम की बात करें अगर, या आप एग्जांपल के तौर पे इस डस्टर की अगर हम बात करें, इस डस्टर का ये फेस इसके अपोजिट फेस के इक्वल होगा, ये वाला फेस इसकी इस अपोजिट फेस के इक्वल होगा, ये वाला फेस इसके अपोजिट फेस के इक्वल होगा. आप काउंट भी कर सकते हैं कि इसमें टोटल फेस है कितने. वहां से एक प्रॉपर्टी आपको और क्यूबॉइड में पता चल जाएगी. काउंट करते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 and 6. इट मींस दैट अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस. आप जब लूडो खेलते हैं तो आपको जो उसमें नंबरिंग होती है वो कहां से कहां तक की होती है? You can see that 1 2 3 4 5 6 and maximum number is 6. It means that a cube has also 6 faces. क्यूब एंड क्यूबॉइड के पास टोटल 6 फेसेस होते हैं. अब दोनों के पास 6 फेसेस हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज क्यूब हैज ऑल द 6 फेसेस सेम. क्यूब के पास जो सारे 6 फेसेस हैं वो सारे सेम होते हैं, इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ के होते हैं. बट क्यूबॉइड के पास ऐसा नहीं होता. क्यूबॉइड के पास क्या होता है? सिर्फ अपोजिट साइड. इट मींस दैट अपर साइड इज सेम एज लोअर साइड, right side is same as left side, front side is same as back side. Only opposite sides are same, then we will call it cuboid. And if all the faces are same, then we will call it cube. ये है cube and cuboid. और इसी के वॉल्यूम के बारे में हमने बात करनी है आज. Everyone knows that volume, formula of volume is equal to volume. If we will calculate volume, then we have to calculate length, breadth and height. And if we will multiply it, then
we will get its volume, length, breadth and height. There are three dimension in the solid, which is length, breadth and height. तीन चीजें होती हैं, थ्री डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम हमें पता चल जाता है कि कितना स्पेस उसने ऑक्युपाई किया होगा। In the case of cuboid, length, breadth and height all are different. It may be same but all are different. Okay, so the formula for cuboid, you can write volume of cuboid is equal to length multiplied by breadth multiplied by height. If you suppose that length is L in short form, breadth is B and height is L, then the short form of formula will be length L into B into X, where L represents length, B represents breadth and X represents height. I hope you all understand. Now let's talk about cube. The same formula will apply on the cube also. How? Let's see. Volume of cube, because cuboid and cube have some equal properties, that is both have 6 faces. दोनों के पास 6 faces है, तो दोनों के फॉर्मूले भी लगभग सेम हो सकते हैं। इसमें भी हम लेंथ की बात करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। इसमें भी आपका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, बट क्यूब के पास जो प्रॉपर्टी थी जो इसको क्यूबॉइड से अलग बना रही थी वो क्या थी? Which is that all the faces are same. It means that its length is equal to breadth is equal to height. इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होगा, then why we will write length, breadth and height are differentiated? हम इसे अलग-अलग क्यों लिखें? हम इसको सबको सेम कर देते हैं। Then the formula of volume of cube will be side, इसको हम साइड बोल देते हैं, तीनों साइड सेम है, तो साइड इनटू साइड इनटू साइड। अगर हमें क्यूब का सिर्फ एक साइड पता चल जाए, क्यूब का हमें सिर्फ एक साइड पता चल जाए, तो हम कह सकते हैं कि अगर लेंथ हमें पता है तो हमें ब्रेथ भी पता होगा, हाइट भी पता होगा, क्योंकि सारे इक्वल है, ऑल इक्वल है। तो साइड इनटू साइड इसका फॉर्मूला बनेगा एंड इसको हम लिख सकते हैं साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। हाँ, वन मेन थिंग, ये तो सिर्फ हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के साथ इसका यूनिट भी लिखना होगा एंड जो यूनिट लिखा जाएगा, अगर मान लीजिए इसका जो यूनिट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा क्यूबिक यूनिट, और सेम इसमें भी हम लिखेंगे क्यूबिक यूनिट। जो भी यूनिट, अगर इसका मीटर, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मीटर में होगा देन हम मीटर, क्यूबिक मीटर लिखेंगे। अगर ये सेंटीमीटर में होगा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो हम क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे। One more thing we have to care about it, that all the dimension will be in the same unit. सारे डायमेंशन एक ही यूनिट में होने चाहिए, एक ही यूनिट में होंगे। It means that if length is given in meter, then breadth and height should be also in meter. अगर लेंथ मीटर में है then breadth and height को भी मीटर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम कन्वर्ट करेंगे। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है then breadth and height को भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। It is compulsory to solve the questions. Okay, you can write it its formulas. Now we will go on the exercise which is 14.2. Everyone open the book, open your book. In 14.2, first one is fill in the blanks. The first question is the amount of space occupied by a solid is given by its, हमने पहले इसके बारे में बात की थी कि the amount of space किसी भी सॉलिड के द्वारा, कोई भी सॉलिड, एनी सॉलिड, किसी भी सॉलिड के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है वो क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है। तो in first fill in the blanks you can fill volume. And second one, the volume of cube is given by, उसका फॉर्मूला लिख देना है आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए आपको साइड
मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कर देना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। आपको लेंथ ब्रेथ या हाइट अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू राइट। आपको ओनली साइड इनटू साइड कर देना है। 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे साइड इनटू साइड। फर्स्ट का सी, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज गिवन बाय, फार्मूला आपको वही फिर लिखना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये क्यूबॉइड में आप फिल करेंगे। डी वाले में वॉल्यूम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। वॉल्यूम को किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो क्यूबिक, क्योंकि 3 बार, अगर ये 2 बार होता जो एरिया में होता है तो हम उसको स्क्वायर लिखते, बट ये 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसलिए हम इसको क्यूबिक लिखेंगे। तो आप इसमें फिल करेंगे क्यूबिक यूनिट। I hope you all done. E, an empty matchbox and another matchbox full of matchsticks both with the same shape and size have, अगर एक खाली मैच बॉक्स है और एक फिल मैच बॉक्स है, आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं। अगर ये बॉटल है, इस बॉटल में मैं पानी भर दिया या बॉटल को मैंने पानी से ठीक है खाली रखा है, पानी नहीं है इसमें, वाटर नहीं है, देन फिर भी ये उतना ही स्पेस कैरी करेगा। वेट भले इसका चेंज हो सकता है बट ये स्पेस में जितना जगह घेर रहा है, खाली बॉटल में उतना ही स्पेस कैरी करेगा और भरा हुआ बॉटल भी उतना ही स्पेस कैरी करेगा। इट मींस दैट आपको इसमें इक्वल फील करना है कि अगर खाली मैच बॉक्स है और भरा हुआ मैच बॉक्स है तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर्स आर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 cubic centimeter means 1 centimeter multiply by 1 centimeter multiply by 1 centimeter. This is called 1 cubic centimeter. 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज का तो वो क्यूबिक बन जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर्स आर दिस, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वो भी क्यूबिक मिलीमीटर में। इट मींस तीनों सेंटीमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एंड यू ऑल नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So put the value 10 millimeter multiply by 10 millimeter multiply by 10 millimeter. After solving you will get 10 into 10 into 10 1000 cubic millimeter, and this is your answer, 1000 cubic millimeter. Question number 3. Question number 3. In question number 3, the question is a labor digs a pit 5.5 meter long. It means that length is equal to 5.5 meter. Wide, it means breadth is equal to 3 meter, b is equal to 3 meter, and 1.5 meter deep. Deep means height, गहराई या फिर ऊंचाई, दोनों सेम हम कैरी करते हैं, दोनों को सेम हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इट मींस h इज इक्वल टू 1.5 मीटर। द क्वेश्चन इज हाउ मच अर्थ इज डग फ्रॉम इट, इसके द्वारा कितना अर्थ यानी कितनी मिट्टी जो है वो खोद दी गई, डग कर ली गई, तो कितनी मिट्टी उसमें से निकाली जाएगी। इट मींस उसमें कितना स्पेस है, कितना स्पेस हम उसमें बना देंगे, तो जितना स्पेस बनाएंगे, जितना बड़ा गड्ढा बनाएंगे उतनी ही मिट्टी हम बाहर निकाल देंगे। उसके लिए आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। सो लेट्स कैलकुलेट द वॉल्यूम। वी सी दैट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर डिफरेंट, तीनों अलग अलग है। इट मींस दैट जो शेप बनेगा, जो सॉलिड शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, क्यूबॉइडल बनेगा, क्यूबॉइडल बनेगा, क्यूबॉइड, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड की तरह होगा, ठीक है, क्यूबॉइड का होगा। हमें वॉल्यूम भी जब निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड व्हिच इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वैल्यू पुट कर देते हैं, लेंथ की जगह 5.5, ब्रेथ की जगह 3 एंड हाइट की जगह 1.5, एंड लेट्स मल्टीप्लाई। यू कैन मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45 एंड
लास्ट से 1 के पे डेसिमल लगा तो 1 का डेसिमल लगा दीजिए एंड 55 को 45 को मल्टीप्लाई करिए। चलिए 55 और 45 को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 2475 बट डेसिमल है, एक अंक दो अंक में डेसिमल लगा हुआ है, एक इसका और एक इसका, तो हम आंसर में 2 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगाएंगे व्हिच इज 24.75 एंड यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट के साथ लिख देंगे क्यूबिक और ये सारा मीटर में था तो हम लिख देंगे मीटर 24.75 मीटर। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके कैरी ऑन करेंगे बट you have to solve question number 4 and 5 in your homework. So write down in your homework question number 4 and 5 in your homework. Okay, thank you class.